خدا کے کلام کے ادب میں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور صرف ایک آیت کو آج رات ہم اپنے سامنے رکھیں گے۔ میری گزارش ہوگی کہ آپ 2 بار بلند آواز کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کریں گے۔ جی۔ کوئی آدمی 2 باتوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے پیار رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ پھر سے پڑھیے گا۔ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک کو محبت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج اترنے والے ہیں، وہ مضمون اسکرین پر ہمارے سامنے ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ ہم 2 بار اس مضمون کو دہرا لیں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں بیٹھ جائے، کیونکہ اسی مرکزی عنوان کو لے کر، اسی مضمون کو لے کر ہم خدا کے کلام میں اتریں گے اور چند ایک باتیں اختصار کے ساتھ خدا کے کلام میں سے لینے اور پھر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جی۔ Money has the power. پھر سے پڑھیں۔ Money has the power. روپیہ پیسہ جو ہے نو ڈاؤٹ کہ ایک قوت ہے۔ روپے پیسے میں طاقت پائی جاتی اور اس طاقت سے اور اس کی قوت سے دنیا کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اسی مرکزی خیال کو لے کر ہم خدا کے کلام میں اتریں گے اور چند ایک باتیں اختصار کے ساتھ خدا کے کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ زبور کی کتاب کے جب ہم 24ویں زبور میں اترتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی۔ جو کچھ ہمیں اس روئے زمین پر دکھائی دیتا ہے وہ سب کچھ خدا کا ہے اور خدا کی طرف سے مجھے اور آپ کو انعام کے طور پر، بخشش کے طور پر دیا گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے، جو کچھ بھی، وہ علم ہے، وہ ہنر ہے، وہ طاقت ہے، وہ روپیہ پیسہ ہے، وہ پوزیشن ہے، جو کچھ بھی میرے اور آپ کے پاس ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے مختار ہیں۔ ہم محض اور محض کیئر ٹیکر ہیں، مالک جو ہے وہ خدا ہے، اور چونکہ سب کچھ اس کا ہے اس لیے وہ کسی وقت بھی مجھ سے اور آپ سے، میری اور آپ کی مختاری کا حساب لے سکتا ہے۔ جو کچھ اس نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس کا مجھ سے اور آپ سے وہ حساب لے سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بات کو بھی یاد رکھیے گا، جس کو جتنا زیادہ دیا گیا ہے اس سے زیادہ طلب بھی کیا جائے گا۔ جس کو جتنا زیادہ دیا گیا ہے اتنا زیادہ حساب کتاب اس سے لیا جائے گا۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہیں، جہان اور اس کے باشندے بھی۔ روپیہ پیسہ جو ہے یہ بری چیز نہیں ہے،
दौलत खां किसी भी शक्ल में हो, वो खुदावन की तरफ से है। वो साथी की शक्ल में हो, वो औलाद की शक्ल में हो, वो कारोबार की शक्ल में हो, वो तंदुरुस्ती और सेहत की शक्ल में हो, या वो नगदी की सूरत में हो, ये खुदा की तरफ से एक बख्शीश है, एक इनाम है। दौलत जो है वो बुरी नहीं है। हाँ, दौलत की हिर्स और दौलत का इस्तेमाल जो है वो किसी भी शख्स को बुरा बना सकता है। अब एक सवाल के साथ हम आज के इस मज़मून में उतरेंगे। अगर आपके सामने इसी ऑप्शन को रखा जाए, एक तरफ खुदा और एक तरफ दौलत, आप किसे नाचीज जानेंगे? ये बाइबल के लफ्ज कोट कर रहा हूं जो अभी आपने पढ़े। अगर एक तरफ दौलत हो, रुपया पैसा हो, सीट हो, पोजीशन हो, नाम हो, मुकाम हो, फेम हो, और एक तरफ खुदा हो, आप किसे नाचीज जानेंगे? क्योंकि कलाम में लिखा है कि हम दो मालिकों की तो खिदमत कत्ल नहीं कर सकते। वंड कर दी गई, एक से मिले रहेंगे और दूसरे से अदावत रखेंगे। ये बाइबल के लफ्ज हैं जो अभी हमने कोट किए हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं। हमें किसी एक से अदावत रखनी होगी और किसी एक को अजीज जानना होगा। तो फिर आज की इस इबादत का हिस्सा बने हुए अपने आप को जवाब दीजिएगा, मैं और आप किसे नाचीज जानेंगे? तवारीख की पहली किताब के जब हम 29वें बाब का मुताला करते हैं तो यहां लिखा है, ऐ खुदावंद बादशाही तेरी है और तू ही बहैसियत सरदार सबों से मुमताज है, और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती है। दौलत और इज्जत जो है वो खुदावंद तेरी तरफ से आती है, किसी इंसान की तरफ से नहीं, क्योंकि तू ही सबों पर मुमताज है, तू ही सरदार है, सरदारी तुझी को सजती है। इसलिए सरदार होने के नाते तू जिसे देता है खूब देता है, और तू जिसे चाहता है देता, इज्जत भी देता है और दौलत भी देता है, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीजें तेरी तरफ से आती हैं। अगर मेरे और आपके पास रुपया पैसा है, अगर मेरे और आपके पास इज्जत है, हम अक्सर ये कोट करते हैं कि हम इज्जत की खा रहे हैं। अगर आपके पास इज्जत है, अगर आपके पास रुपया पैसा है, तो क्या आप उठते बैठते इकरार करते हैं कि ये खुदावन की तरफ से है? ना तो अपने रुपए पैसे को लेकर अतराएं, ना अपनी इज्जत को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर, अपनी हैसियत को लेकर अतराएं। क्योंकि जब बाइबल का खुदा गज़ब में आता है तो फिर बादशाहों को जानवरों की खुराक बैल की सूरत में खाने पर मजबूर कर देता है। तो हम अपनी किसी चीज पर अतराए नहीं। अगर खुदा ने हमें पोजीशन दी है, सीट दी है, मुकाम दिया है, मर्तबा दिया है, शान दी है, दौलत दी है, तो ये खुदावन की तरफ से है। तो फिर हमें करना क्या है? हमें
याका के बेटे अजूर की तरह उठते बैठते ये कहना है, मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद, मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोजी दे। आए खुदा, ना मुझे कंगाल कर ना दौलतमंद, मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोजी दे। ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं कि खुदावन कौन है, या मुबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। मोहताज भी ना करना कि तेरा नाम ही नीचे चला जाए, और इतना भी ना देना कि मेरी आंखें यहां से यहां चली जाएं और मैं कहूं कि खुदा कौन है। मेरी रोज की रोटी रोज मुझे दे। और आप जानते हैं कि वही तालीम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने दुआए रब्बानी में मुझे और आपको दी है। हमें सिर्फ रोज की रोटी खुदावंद से रोज मांगनी है। और मैं बड़ी दलेरी के साथ कहूंगा कि जिसे रोज की रोटी रोज मिले वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। जिसे रोज की रोटी रोज मिले वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी जबरदस्त ये स्टेटमेंट है, कहा कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि पहाड़ी वास के तनाजुर में खुदावंद यीशु मसीह ये सिखा रहा है कि ऐसा ना हो कि रुपया पैसा जिंदगी के किसी वक्त में और किसी मुकाम पर तुम्हारा खुदा बन जाए। आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो रुपए पैसे के पुजारी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन के आगाज में अपने कारोबार पर अपने ठिये पर बैठे हुए सबसे पहले खुदा की तरफ नहीं, वो अपनी तिजोरी की तरफ देखते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है वो तिजोरी को चूमते भी हैं और उसे सजदा भी करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, और जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं आप उनको अच्छे से जानते हैं, जो गले को हाथ लगाकर सबसे पहले उसे चूमते भी हैं और उसे ही अपना सब कुछ समझते हैं। खदशा है कि दौलत किसी का खुदा ना बन जाए, इसलिए कहा तुम्हें किसी एक की खिदमत करनी है, या तो दौलत की या फिर अपने खुदा की। अब चंद एक बातें मेहरबानी से नोट कर लेंगे, ये बड़ी अहम बातें हैं, मेहरबानी से नोट कर लें। पहली बात, रुपया पैसा जो है वो किसी भी शख्स के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। रुपया पैसा जो है वो किसी भी शख्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए ये कहा गया कि जब तुम दुआ करो तो कहा करो हमारी रोज की रोटी रोज हमें दिया कर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, खुदावंद ये कह रहा है कि खुदावंद से ये कहो कि हमारी आंखें रुपए पैसे की तरफ नहीं, मालो मता की तरफ नहीं, हमारे कारोबार की तरफ नहीं, हमारी सीट की तरफ नहीं, हमारी पोजीशन की तरफ नहीं, बल्कि हमारी आंखें तेरी तरफ लगी रहे। रोज की रोटी रोज मांगनी हमने कहां से है? खुदा से। तो इसका मतलब क्या है? इसका सादा सा मतलब यह है कि हमारी आंखें सिर्फ खुदा की तरफ लगी रहे। जरा गौर कीजिएगा साथी भाई, जंगल बियाबान वीराना,
मिस्र से निकले हुए लोग लड़ते हैं, खुदा से झगड़ा करते और कहते हैं हमें मिस्र की हांडियां याद आती हैं, हमें मिस्र के खरबूजे याद आते हैं, हमें मिस्र का लहसुन याद आता है, हमें खीरे वहां के याद आते हैं। बाइबल में लिखा है हम तो वहां गोश्त हांडियां भर भर कर खाते थे। कि मेरे खुदा का कर्म है, उसने कहा जंगल में मंगल लगा दूंगा। और लोगों से कहा एक बात नोट कर लो, तुम्हें 6 दिन तक अपने लिए खुराक जमा करनी है, सिर्फ उसी एक दिन के लिए, अगले दिन के लिए नहीं, क्योंकि अगले दिन के लिए अगर तुम जखीरा करोगे तो मैं उसमें कीड़ा लगा दूंगा। लेकिन यही खुदा कहता है कि सब्बत शुरू होने से पहले तुमने सब्बत के दिन के लिए भी खुराक जमा कर लेनी है। सब्बत को तुमने अपने लिए खुराक नहीं बटोरनी। अब खुदा की कुदरत देखें, हर रोज कीड़ा लगता है लेकिन सब्बत के रोज नहीं लगता। हर रोज कीड़ा लग जाता है लेकिन सब्बत के रोज खुदा कीड़ा लगने नहीं देता। अरे भाई, दौलत से ज्यादा, खाने पीने की चीजों से ज्यादा खुदा को प्यार करेंगे तो फिर फफूंदी नहीं लगेगी। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਫੂੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਲੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਣਾ, बैक्टीरिया पैदा कर दूंगा ताकि ये खाने के लायक ही ना रहे। तो आंखें किसकी तरफ होनी चाहिए? खुदा की तरफ। रुपए पैसे के हवाले से, खाने पीने के हवाले से हमारी आंखें खुदा की तरफ लगी हुई होनी चाहिए और हमें यही कहना चाहिए, रोज की रोज हमें दिए। एक और बात मैं आपसे कह दूं, मेरी खिदमत के 36 सालों का ये तजर्बा है जिन्होंने सब्बत के दिन को पाक माना है और आज भी वो सब्बत के दिन कोई काम नहीं करते, बल्कि अपने रब खुदावंद को अपनी प्रायोरिटी पर रखते हैं, अपनी शॉप्स को बंद करके रखते हैं, अपने कारोबार को बंद करके रखते हैं। मैं गारंटी देकर ये कहता हूं, खुदा सैटरडे के रोज ही उन्हें दुगना और चुगना दे चुका होता है। शानवाज पतरस की मिसाल, अशरफ अब्दुल्ला की मिसाल, आप उनको जानते हैं, और फिर भाई रियाज की मिसाल, आप उनको भी जानते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके मैंने नाम कराची से लिए हैं, जिनके बारे में मशहूर रहा है कि ये मट्टी को हाथ लगा दें तो सोना बन जाता है। लेकिन उन तीनों लोगों ने ये खुदावंद से वादा किया, करोड़ों रुपए का भी अगर बिजनेस हमें, करोड़ों रुपए का बिजनेस भी अगर हमें संडे के रोज मिलेगा, हम उसे नहीं लेंगे, नहीं करेंगे हम। और जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनकी ऐसी जगहों पर दुकानें थीं जहां एक छोटे से किसी ठिया लगाने वाले शख्स को भी करोड़ों रुपए का भत्ता देना पड़ता था। मैं सिटी की, कराची सिटी की बात कर रहा हूं। आप खुदा के साथ थोड़े संजीदा तो हो, और आप रुपए पैसे से ज्यादा, अपने कारोबार से ज्यादा अपने खुदावंद को प्यार करके तो देखें, फिर देखें वो आपके साथ करता क्या है। प्रायोरिटी पर उसको रखें, वो आपकी पहली तरजीह होना चाहिए। याद रखिएगा, जल्दी के साथ आगे बढ़ेंगे। रुपए पैसे की ये सिफ्त है कि ये एक हाथ से आता है और ये दूसरे हाथ से चला जाता है, लेकिन आने और जाने के इस चक्कर में ये कम से कम हमें 4 चीजें दे जाता है। नोट करें भाई,
पैसा जो है ये एक हाथ से आता है दूसरे हाथ से चला जाता है, लेकिन आने जाने के इस सिलसिले में ये हमें 4 चीजें देकर जाता है। पहली चीज, सेहत के हवाले से बहुत कुछ जो नहीं होना चाहिए। लो, मैं बड़ी दलेरी के साथ कहता हूं भाई, कुछ देर के बाद ये पैगाम वायरल हो जाएगा। मैंने अमीर तरीन लोग कम ही सेहतमंद देखे हैं, ये मेरी गारंटी है। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं, अमीर जितने लोग होंगे वो उतने ज्यादा बीमार होंगे, और उस बीमारी के पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो अपने कारोबार को और अपने रुपए पैसे ही को अपना सब कुछ समझ रहे हैं, खुदा को भूल चुके हैं। पता नहीं आपकी राय क्या होगी, लेकिन मेरी तो कैलकुलेशन यही है। मैंने कम ही लोग अमीर भी हों और सेहतमंद भी हों, मैंने बहुत कम देखा है। और खुदा हमें अमीरों वाली बीमारियों से बचाए, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਫਲੂ ਸ਼ਲੂ ਖਾਂਸੀ ਮਾਨਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। दूसरी बात, रुपया पैसा एक हाथ से आता है दूसरे हाथ से चला जाता है, ये न सिर्फ हमें सेहत के तौर पर गिरा देता है बल्कि हमें अखलाकी तौर पर भी इंतहाई गिरा देता है। और मैं फिर से दावे में कहूंगा, अमीर तरीन लोग जितने बदतमीज होते हैं, गरीब कभी भी उतना नहीं होता। ये मेरी कैलकुलेशन है भाई। जितना बंदा अमीर होगा, जितना उसके पास रुपया पैसा होगा, वो उतना ज्यादा बदतमीज और बेअदब होगा, क्योंकि वो बंदे को बंदा तो समझते ही नहीं है। रोज ही तजर्बा करने हैं, ਅਸੀਂ छोटी जी ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੋਬਾ। इंज में सदा ऐसे गड्डी ते रहना सी, खुदा तोड़ के रख देता है, तोड़ के रख देता है। लोग समझते हैं कि शायद वो गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है भाई। अगर आज तुम्हारे पास गोल्डन स्पून है, खाने पीने को अच्छा है, तो ये सब खुदावन की तरफ से है, उसकी बख्शीश है। आप मालिक नहीं हैं, आप मुख्तार हैं और आपको हिसाब देना होगा। बेटा याद कर, तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह गरीब लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब तू यहां तड़पता है और वो यहां आराम पाता है। तू ते रोज बाहर निकलता से, तेनू दरवाजे ते लाजर नजर ही नहीं सी आਉਂਦਾ। बेअदब और तू गुस्ताख था, तूने आंखें यहां रखी हुई थी, तेरे दरवाजे पर उसे रख दिया गया था, लेकिन तूने कभी देखा ही नहीं उसको। इतना बदतमीज, इतना बेअदब और इतना गुस्ताख था तू। अब तुझे भुगतना पड़ेगा। लाजर को भेज कि पानी के साथ मेरी जुबान को तर करे, क्योंकि मैं यहां तड़पता हूं। कहा बेटा अब ये तड़प ही तेरे लिए रह गई है, इसका कोई इलाज नहीं। तीसरी बात, पैसा एक हाथ से आता और दूसरे हाथ से चला जाता है, लेकिन जब पैसे की फरावानी होती है तो हम खुदा के साथ साथ अपनों को भी भूल जाते हैं। तो मेरा फिर से कहूंगा, ये अपना ओपिनियन है, मेरा अपना तजर्बा है। जितनी कलीसियाएं मैंने घूमी हैं, लाखों लोग मेरे हाथ से निकले हैं और मैं
बड़े करीब से इस बात को जानता हूं, जरा सा रुपया पैसा आया, लोग अपनों को भूल गए। लोगों को याद ही नहीं कि उन्होंने शुरू कहां से किया था। और आज अगर वो इस मुकाम पर हैं तो ये खुदा की बख्शिश है, वो डिजर्व नहीं करते। ये खुदा की बख्शिश है कि खुदा उनको उठाकर यहां लाया है। लेकिन रुपया पैसा क्या आया, अपने गए, अपने चले गए, सुकून खत्म हो गया, अपने चले गए। चौथी बात, रुपए पैसे की फरावानी जो है वो हमेशा आपको टेंस किए रहती है। आपने देखा होगा ये बड़े बड़े लोग जो है ना, वो हाथों पर भी यूं यूं गिनते रहते हैं, उन्होंने काम ही को नहीं, चौदह फिरते हैं। क्या हो गया भाई, की हो गया ये? हर वक्त कैलकुलेशन में, हर वक्त कैलकुलेशन में। मैनू लगता है कि सुते पे भी इंज करते होंगे। वो बीबी कहती होगी फिर किनू इशारे करन दे, ये खुरे की गिनन दे सुते पे। अरे भाई क्या हो गया? याद रखें, मैं एक बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, रुपया पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन रब खुदावंद उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी। इस बात के लिए कभी परेशान ना हुआ करें कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। इस बात पर खुश हुआ करें कि दुनिया की तमाम तरह की, जिंदगी की तमाम तरह की हालतों में खुदा आपके साथ है। कुछ आपके पास है या नहीं है, इस बात से परेशान ना हुआ करें, क्योंकि जब आप उसमें होंगे तो आप बढ़ना भी सीख चुके होंगे, घटना भी सीख चुके होंगे। फिर आप इन चीजों से बागातर होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, नहीं होंगे परेशान आप, क्योंकि आप जानते हैं ये हवा यरी, डोंट वरी। जब ये हवा यरी है तो फिर परेशानी की क्या बात है, उसके होते हुए कमी नहीं होगी। रुपया पैसा जब आ जाए तो फिर माजरत के साथ कहूंगा, लोग इससे इंसानों को खरीदते हैं, चीजों को खरीदते हैं, पोजीशंस को खरीदते हैं, सीटों को खरीदते हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ खरीदते हैं। तो फिर हमें क्या करना है? हमें खुदावंद से यही कहना है कि खुदावंद ना मुझे मोहताज कर, ना मुझे दौलतमंद बना, मेरी रोज की रोटी रोज मुझे दे, ताकि मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ तेरी तरफ लगी। 4 बातें कहकर खत्म करूंगा। पहली बात, अच्छे मैनेजर बनने की कोशिश करें। रुपया पैसा अगर खुदावंद ने दिया है तो अच्छे से मैनेज करें, और दिन के इख्तिताम पर जरा चेक कर लिया करें। अच्छा, हम चूंकि इस बुजुर्गी में आ गए हैं, हम शायद करते हैं, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, जवानी में बंदा नहीं करता, लेकिन इस उम्र में आकर बंदा कैलकुलेशनल ही रह जाता है बस। तो दिन के इख्तिताम पर आपको सोचना पड़ेगा कि आपने कहां कहां खुदा का दिया हुआ रुपया जो है वो गलत तौर पर इस्तेमाल किया। आपको सोचना होगा, क्योंकि कोड़ी कोड़ी का बाइबल में लिखा है, कोड़ी कोड़ी का हिसाब लेना। दूसरी बात, याद रखिएगा कि हमें सबसे पहले खुदा की रास्तबाजी और उसकी बादशाही की आवश्यकता है। और आप यीशु बादशाह की बादशाही में हो तो फिर आपको फिक्र काहे की है? उसकी बादशाही में कोई भूखा सो सकता है, कोई नंगा रह सकता है, कोई बेपर्दा रह सकता है। उसकी बादशाही में तो सबको वाफिर मिकदार में मिलता है। तीसरी बात याद रखें, किसी भी तरह की बरकत को लेने का राज यह है कि आप अपने खुदा और उसके घर के साथ लिपटे रहें। किसी भी तरह की बरकत को लेने का राज यह है
कि आप अपने रब खुदावन के साथ और उसके घर के साथ लिपटे रहें, अपने ताल्लुक को बनाए रखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप खुदा और उसके घर के साथ अपने ताल्लुक को बनाए रखेंगे, कादिर खुदा आपको भरता और भरता रहेगा। चौथी और आखिरी बात, अच्छा है कि हम सारे शाबाशी के लायक हैं। कितना अच्छा है कि हम जितने यहाँ मौजूद हैं, हम में से एक एक के कंधे को थपथपाते हुए जब हम खुदावन के सामने पेश किए जाएं, तो खुदा हम में से एक एक के कंधे को थपथपा कर ये कहे, आशर वेल डन, तू थोड़े में दयानतदार रहा, अब मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाता हूँ। सामर वेल डन, तू बहुत अच्छा रहा, तू थोड़े में दयानतदार रहा, अब मैं तुझे बहुत सारी चीजों का मुख्तार बनाता हूँ। अपने बाप की खुशी में शरीक हो। तू थोड़े में दयानतदार रहा। तो जो कुछ मेरे और आपके पास है, उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी शुरू करें। अच्छी उम्मीद के साथ जिंदगी के इस पहिए को चलाएं, गाड़ी को आगे चलाएं। मेरा खुदा, आपका खुदा मेरी और आपकी ज़रूरतों को भी जानता है और वो मेरी और आपकी ख्वाहिशों को भी जानता है। और मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, कल भी मैंने सिखाया जबल अली चर्च में खड़े होकर, मेरी समझ से बाहर है कि कोई खुदा का बेटा और बेटी हो और वो बेबस और मजबूर हो और छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसता हो। मेरी समझ तो बाहर निकली, मैनू 36 साल से समझ नहीं आया। अगर तुहानू आया तो बाहर निकल के मैनू समझाया हो। लेकिन अगर कोई खुदा का वाकई बेटा और बेटी है, अगर कोई खुदा के साथ थोड़ा सा भी सिंसियर है और वो छोटी छोटी चीजों के लिए तरसे, छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसे, तो मेरी समझ से बाहर, तो हमें सोचना पड़ेगा कि फिर एरर कहां पर है, कमी कहां पर है। क्योंकि वो तो देने वाला खुदा है और जब वो देता है कसरत के साथ देता है, और वो देता है और उसके खजानों में कभी कमी, कभी कमजोरी नहीं आती। खुदा के यहां कभी रिसेशन नहीं होता। आइए दुआ करें। मेरे खुदावंद, तेरे कलाम की गहरी और प्यारी बातों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद के हमें सिंगल माइंडेड बना, हर तरह का दोहरा मेयार,